नमस्कार। सो आज मैक्रो इकोनॉमिक्सर समष्टिवादी अर्थविज्ञानर ओके क्लास 12 मैं बैलेंस अफ पेमेंट आंतर्जातिक जी लेन देन हे चैप्टारटुर मैं आज स्पेशली दुई तीनटा मान न्यूमेरिकल साम मीन्स गाणितिक जी समाधान সেইখিনি কৰিব যত্ন কৰিম বাট ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ যেটো নিউমেৰিকেল বা যেটো ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন হেতু কৰিব যত্ন কৰিছো ভালকে চাবা ক্লাস 12 ৰ एग्जाम আহি পাইছে সো সেইখিনি বস্তু ভালকে জানিবলৈ যত্ন কৰিবা নিউমেৰিকেল সাম ইয়াৰ পৰা আহিবই ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে বলা আমি হেতু আৰম্ভ কৰো হলে মই নিউমেৰিকেল সাম এটা লিখি থৈছো সোয়া মই নিউমেৰিকেল সলিউশনস বুলি লিখিছো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস বুলি লিখিছো ক্লিয়াৰ ইয়াত মই লিখিছো ইফ ইন এন ইকোনমি কোনো এক অৰ্থনীতিৰ এটো উপভোগ ফলন দি দিছো মই বুজাই দিছো দিস ইজ অটোনমাস কনজাম্পশন দিস ইজ এমপিসি দিস ইজ ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার দিস ইজ গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার দিস ইজ ট্যাক্স রেভিনিউ অফ দ্য গভর্নমেন্ট দিস ইজ এক্সপোর্ট দিস ইজ import function okay this is autonomous import this is marginal propensity to import mpm okay so import finally depends upon income clear question of tomak solution koribo dise equilibrium income deficit or surplus budget and trade surplus or trade deficit tinta bostu lobo lage equilibrium income budget or surplus ne deficit ट्रेड सरप्लस ने डेफिसिट एकदम भालके मैं बस्तु किटा बुझाई दिसु क्लियर तितिया हले तुमार प्रथम क्वेश्चन तो हल बाजेटत मैं আগতো কইছো বাজেটত ডেফিসিট বা সারপ্লাস তিতিয়া হবো যদি বাজেট এখনত ক্লিয়ার বাজেট এখনত ডেফিসিট বা সারপ্লাস হলে সদায় ডেফিসিট বাজেটত মই লিখি দিছো ডেফিসিট বাজেট and surplus budget okay surplus budget deficit budget of hoday government expenditure to besi hobo tax to kom hobo means government tax revenue is less than government expenditure aru surplus budget of government or tax revenue besi hobo government expenditure kom hobo means in deficit budget okay in deficit budget okay government expenditure is more than tax revenue but in case of surplus budget tax revenue is more than government expenditure ei bostu to bhalke bujiba okay so this is one of the important concept clear so deficit budget of always g greater than t and surplus budget of tax revenue is always greater than government expenditure clear this is first one second concept to hoise आमार जीटू इक्विलिब्रियम इनकामर जीटू आइडेंटिटी इन एन ओपन इकोनॉमी तात आमार y इज इक्वल आसिले c प्लस i प्लस g प्लस nx ओके दैट मीन्स y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस nx नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इते क्वेश्चन होइसे x minus m means what export minus import means nx okay तो ये जो nx वाला कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको मैंने हिंदी तो कोई दिसु nx वाला कॉन्सेप्ट है ना ये nx वाला कॉन्सेप्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अभी ये जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसको बोलते हैं रियल एक्सपोर्ट ओके तो ये रियल एक्सपोर्ट हो सकता है पॉजिटिव रियल एक्सपोर्ट हो सकता है नेगेटिव अगर nx का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने दे तो तुमको बोलना है nx नथिंग बट रियल एक्सपोर्ट एंड दैट रियल एक्सपोर्ट आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव ओके तो nx हो सकता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो ये nx कंसेप्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर मान लो इधर export is greater than import then definitely it is positive export okay but in that situation if export is less than import then definitely it is negative import मतलब export अगर ज़्यादा है import से this is positive export
इफ़ इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो इट इज़ नेगेटिव एक्सपोर्ट। ओके, मतलब एक्सपोर्ट का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इंपोर्ट वैल्यू इज मोर देन एक्सपोर्ट वैल्यू। क्लियर? अगर एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होगा इंपोर्ट वैल्यू कम होगा तो दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सपोर्ट। क्लियर? बट फाइनली NX इज सेड टू बी रियल एक्सपोर्ट। तो रियल एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हो गया तो एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा, और नेगेटिव एक्सपोर्ट हो गया तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन हुआ ट्रेड में, मान लो ट्रेड में अगर सरप्लस हो गया इसका मतलब हो गया एक्सपोर्ट ज़्यादा होना पड़ेगा इंपोर्ट कम होना पड़ेगा। ट्रेड में अगर डेफिसिट हो गया तो एक्सपोर्ट कम होगा इंपोर्ट ज़्यादा होगा। क्लियर? तार माने मैं कब विचारिছোঁ ट्रेडत जदि उद्धृत वाणिज्य है, उद्धृत वाणिज्य तेतिया एक्सपोर्टर भैल्यू बेसि हब इंपोर्टर भैल्यू कम हब, रप्तानिर मूल्य बेसि आमदानिर मूल्य कम हब, और घाटी वाणिज्य हले रप्तानिर मूल्य कम हब आमदानिर मूल्य बेसि हब। क्लियर हब? सो এইখিনি কনসেপ্ট আমার লাগিব এই নিউমারিক্যাল সামটো কৰিবৰ কাৰণে। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে বলা সেইটো আমি কৰোঁ। যদি কৰিব হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ বস্তুখিনি দি দিছে, তেতিয়াহ'লে মই লিখিব লাগিব কি সলিউশনত লিখিব লাগিব। সলিউশনত প্ৰথম তুমি লিখিবা y ইজ ইকুৱেল c প্লাছ i প্লাছ g প্লাছ হোৱাট nx। ओके क्लियर? सो এইখিনি লিখি পেলাই তুমি ইয়াত কি কৰিবা ইয়াৰ মানকেইটা দিয়া হৈ আছে সেইকেইটা বহাবা। মই এইখিনি মানকেইটা লিখিবৰ কাৰণে ইয়াত চিৰ মান দিয়া আছে তোমাৰ 200 প্লাছ 0.75y লিখিলো প্লাছ আইৰ মান দিয়া হৈ আছে কিমান 500, সো 500 বহালো প্লাছ জিৰ মান দিয়া আছে 1000 বহালো প্লাছ NX माने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बुली कोৱাৰ লগে লগে ইয়াত एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर ভ্যালু কিমান দিছে 300 और এফালে এটো দিছে। दैट मीन्स एक्सपोर्ट माने হৈছে তোমাৰ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, सो ইয়াৰ ভ্যালুটো পুট কৰিবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব মই ওপৰত মুছি দিছো মানকেইটা লিখি লম। ইয়াৰ মানটো এটো আছে ন एक्सपोर्ट 300 আছে, তেতিয়া হলে যদি সোৱা যায় তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা মই এখিনি মুছি দিছো, ইয়াৰ পৰা মই ফৰ্মুলাটোত এখিনি বহাই লওঁ। তাৰ মানে y ইজ ইকুৱেল টু 200 প্লাছ 0.75y प्लस 500 प्लस 1000 प्लस एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है 300 वो बैठा दिया माइनस इंपोर्ट था, इंपोर्ट का वैल्यू कितना 200 प्लस 0.25y। क्लियर? मतलब 1000 ये हो गया कंजम्पशन का वैल्यू, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वैल्यू, ये हो गया एक्सपोर्ट का वैल्यू। इतना हो गया क्या, ये माइनस तो हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। क्लियर? तो हो गया। अभी नीचे वाला चीज मैं ओमिट कर देता हूँ। ओके, हो गया। अभी क्वेश्चन है मुझे यहाँ से इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। तो इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए तुमको क्या करना है y लिख दो, जितना वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू वो सब प्लस कर दो। 200 500 700 1700 1700 17 18 19 20 20 20 से फिर ये 2 चला जाएगा, मतलब हो गया कितना 200 500 700 1700 1700 17 2000 2000 फिर माइनस 200 हो गया 1800, है ना 1800 हो गया। उधर रह गया तुम्हारा क्या प्लस 0.75y रह गया, और उधर प्लस माइनस से माइनस 0.25y। क्लियर? ये हो गया। अभी क्या करना है y लिख दो, फिर 1800 लिख दिया प्लस
0.75 से अगर ये चला जाएगा कितना होगा 5 से 5 चला गया 0 7 से 2 चला गया मतलब 5 मतलब ये रह जाएगा क्लियर। तो फाइनली इधर तुमको क्या करना है y टर्म से ये y टर्म्स इधर लेके आ जाओ हो गया 0.50y इधर हो गया 1800 हो गया। उसके बाद y को तुम कॉमन ले लो 1 माइनस 0.50 इज इक्वल 1800 है ना। उसके बाद 1 से 0.50 चला जाएगा तो 0.50 रहेगा इज इक्वल 1800 क्लियर। उसके बाद तुमको क्या करना है y को रख दो दिस इज इक्विलिब्रियम इनकम हो जाएगा 1800 बाई 0.50 ओके। इसको अगर पॉइंट उठा दो तो निकल जाएगा 50 इंटू 100 15 इंटू 100 होने से क्या होगा ये कट गया है ना। उसके बाद क्या होगा 18,000 हो जाएगा 18,000 हो जाएगा तो इसके मतलब 5 आ जाएगा। तो 5 कितना बार जाता है देखो इसको 3600 निकलेगा शायद 3600 निकलेगा है ना। बस 36 हाँ यही होगा ना 3600 5 से कर लो 5050 शून्य हाथे 1 3 से 15 16 17 18 हाँ 18,000 हो जाएगा है ना। मतलब 36,000 निकलेगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम इनकम क्लियर। मतलब क्या किया मैंने मैं अहोमियात एबार কৈ দিছো क्लियर। दैट मीन्स मैं जानू y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m इतियात मैं उपभोगर फलनटो बहालो इयात विनियोगर मानटो बहालो इयात सरकारी व्ययर मानटो बहालो इयात रप्तानिर मानटो बहालो इयात आमदानिर जिटो फलन हेतु बहालो तारपिছত गोटेइखिनि प्लास करिलो y टार्म्सखिनि की करिलो एफाले आनिलो y टार्म्स एफाले आनार लगे लगे इयात तुम्हार फाइनली থাকি গল किमान 0.50 1800 দি যদি তুমি ডিভাইড কৰা তেতিয়ালে 3600 ওলাই আছে ক্লিয়ার। আর দিস 3600 ইজ নাথিং বাট ইয়োর ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম ফাইন্ডত रोमान 1 जिटो आছিলে ভারসাম্য আয় ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম ওলাব দিছে হেতু ওলালো ক্লিয়ার। তো ফাইনালি ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম পাই গলা কিমান 3600 ক্লিয়ার। সো 3600 जिटो তুমি পালা সেই 3600 টু দি পেলাই তুমি কি কৰিবা তুমি বাজেট ঘাটি বা বাজেট সারপ্লাস টু লবা। নাম্বার 2 মিন্স নাম্বার 2 आছিলে deficit or what deficit or surplus budget হল হেতু লাভৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা তুমি সারপ্লাস বাজেট কনসেপ্টে লৈ লোৱা। সারপ্লাস বাজেট যদি কনসেপ্ট লোৱা তেতিয়ালে দেখা যায় ইয়াত মই ইয়াতে লিখি দিছো মানকেইটা ইম্পৰ্টৰ ফাংচনটো এটো আছিল ট্যাক্সৰ এটো আৰু গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ এটো। দ কোৱেশ্চন হৈছে ডেফিসিট বাজেট বা সারপ্লাস বাজেট ওলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিছো গভৰ্নমেন্ট ট্যাক্স ৰেভিনিউ মাইনাস গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছো। ট্যাক্স ৰেভিনিউ দিয়া আছে তোমাৰ কোৱেশ্চনত কিমান 400 হেতু লিখিলা গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান দিয়া আছে 1000 হয়নে নহয়। তেতিয়া হলে যদি তুমি হেতু চোৱা তেতিয়া হলে ইয়াত মিনিং টু কি ওলাই গভৰ্নমেন্ট ট্যাক্স ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিছে 400 মিন্স গভৰ্নমেন্টৰ ট্যাক্স ৰেভিনিউ পাইছে 400 বাট গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে 1000 তেতিয়া হলে ইকোনমিত গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ইজ মোৰ দেন হোৱাট এভাৰ গভৰ্নমেন্ট আৰ্ন মিন্স গভৰ্নমেন্টে আৰ্ন কৰিছে 400 रुपीस and government expenditure hoise in a financial year of kiman 1000 rupees clear. So in that situation government expenditure is more than government tax revenue no. So in that situation budget ot ki hobo minus ahi jabo okay 600 আর 600 যদি মাইনাস আহিছে ডেফিনেটলি এটো কি hobo governmentor budget ot deficit budget হৈ গৈছে clear. Means deficit budget ot always ki hoy government expenditure is more than government tax revenue clear. আর হেতু মাইনাস হোৱা মানে কি বাজেটত ডেফিসিট হ'ব ক্লিয়ার। সো সদায় বাজেট ডেফিসিট বা বাজেট সারপ্লাস কনসেপ্টত তুমি গভর্নমেন্ট
टैक्स रिवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कन्सेप्ट आनिबा क्लियर एटू डिफारेंसटुए हबो कि जदि पजिटिव आए तो सारप्लास बाजेट हबो नेगेटिव आइले डेफिसिट बाजेट हबो क्लियर हल गोल दिया नम्बर 2 नम्बर 3 जी तुमाक दिसे हेतु कि दिसे आइदर इट इज व्हाट ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस है ना নহয় ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस मीन्स ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड व्हाट ट्रेड सरप्लस हेतु कारणे तुमी कि करिब লাগিব आमी जानो गवर्नमेंटर जितु गुटे इकोनॉमी ट्रेड डेफिसिट बा ट्रेड सरप्लस होबले हले आमी ए कन्सेप्ट आनिब লাগিব व्हाट ट्रेड कन्सेप्टत सदाय एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कन्सेप्ट आनिबा क्लियर तेतिया हले आमार यात एक्सपोर्ट किमान और इम्पोर्ट किमान हे बस्तुটো चाले हल आमार यात एक्सपोर्ट आसिले मोस्ट प्रोबेबली 300 হয় না নহয় माइनस इम्पोर्ट है ना तो इम्पोर्ट उलाबार कारणे तुम সেই इम्पोर्ट फांक्शन तो तुम कि करा आमार इक्विलिब्रियम इनकाम 36 एटू ओलाइছিল एटू कि करिबा तुम इक्विलिब्रियम इनकामत पुट करि दिबा क्लियर मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं इक्विलिब्रियम इनकम जो 3600 निकला था ना वो तुम क्या करना ये इम्पोर्ट फंक्शन में ये वाई टर्म्स में ये पुट कर देना क्लियर ये अगर पुट करोगे तो निकल जाएगा 200 प्लस 0.25 इंटू दिस 3600 ओके अगर ये करोगे तो ये निकल जाएगा 200 और इसको अगर इंटू करोगे शायद 900 निकलेगा क्लियर क्लियर तो फाइनली तुमको मिल गया कितना 1100 ओके तो फाइनली इंपोर्ट का वैल्यू निकल गया तुम्हारा कितना 1100 तो इंपोर्ट जितना हुआ इंपोर्ट हुआ 1100 वो जो वैल्यू निकला कैसे निकला 0.25 इंटू वाई 0.25 इंटू वाई मतलब 0.25 इंटू 3600 जो पहले निकाला था और एक्सपोर्ट 300 था तो फाइनली देखा जाए एक्सपोर्ट वैल्यू 300 और इंपोर्ट वैल्यू 1100 है कि नहीं तो डेफिनेटली इकोनॉमी में क्या हो जाएगा डेफिसिट कैसा डेफिसिट डेफिनेटली इधर -800 हो जाएगा और अगर NX कॉन्सेप्ट माइनस में अगर चलाए तो डेफिनेटली ये होगा ट्रेड क्या ट्रेड डेफिसिट ओके क्लियर सो ट्रेड डेफिसिट हो गया कितना -800 क्लियर गुड तो फाइनली 3 चीज़ हम लोग ने निकला एक इक्विलिब्रियम इनकम एक हो गया बजट डेफिसिट एक हो गया ट्रेड डेफिसिट क्लियर ये दो कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट लोग ना बच्चे लोग कंफ्यूज होता है बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट में क्या अंतर है बजट डेफिसिट में तुम्हारा गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बात आएगा लेकिन ट्रेड डेफिसिट में तुम्हारा दो चीज़ आएगा एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू वो दोनों का डिफरेंस क्लियर मैं लिख के दे रहा हूँ क्लियर मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं अगर बजट डेफिसिट वाला बात आ गया बजट वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंडर में दो कॉन्सेप्ट हो गया सरप्लस बजट नंबर बी डेफिसिट बजट ओके डेफिसिट बजट क्लियर ये हो गया बजट वाला कॉन्सेप्ट फिर NX वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मतलब नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट ठीक है सो ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो इसके अंदर में दो कॉन्सेप्ट एक हो गया सरप्लस ट्रेड सरप्लस लिख दो ओके ट्रेड सरप्लस और एक तो हो गया ट्रेड डेफिसिट अगर ट्रेड में सरप्लस हुआ तो ऑलवेज ध्यान रखना एक्सपोर्ट बड़ा होगा इंपोर्ट कम होगा मतलब इन दैट सिचुएशन एक्सपोर्ट बड़ा होगा इंपोर्ट कम होगा और जो वैल्यू निकलेगा उसका वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और ट्रेड डेफिसिट में डेफिनेटली इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा मतलब इन दैट सिचुएशन अगर देखा जाए तुम अगर एक्सपोर्ट पहले लिखो इंपोर्ट बाद में लिखो तो इसमें क्या होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख सकते हो इसका मतलब ये होगा एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट होगा और जो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा
मतलब ट्रेड सरप्लस में एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होना ही है, ट्रेड सरप्लस में एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होना ही है। और ट्रेड डेफिसिट में एक्सपोर्ट का वैल्यू कम होगा, इंपोर्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्लियर? मतलब रिजल्ट निगेटिव में निकलेगा। सरप्लस बजट में रिजल्ट पॉजिटिव होगा, डेफिसिट बजट में रिजल्ट निगेटिव होगा, ट्रेड सरप्लस में रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ट्रेड डेफिसिट में रिजल्ट निगेटिव होगा। क्लियर? फाइनली इन ट्रेड सरप्लस export is more than import. If trade deficit, export less than import. Clear? But in budget surplus, government tax revenue is more than government expenditure. If deficit budget, then definitely tax revenue is less than government expenditure. Means in that situation government expenditure is more than government tax revenue if it is deficit budget. Clear? मतलब बजट में T and G कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान देना। किंतु बजट में सरप्लस बजट में क्या होगा, टैक्स माइनस G, मतलब इन दैट सिचुएशन T इज ग्रेटर देन G। लेकिन बजट डेफिसिट में T माइनस G लिख सकते हो, लेकिन इधर T लेस देन G होगा। मतलब सरप्लस बजट में टैक्स रिवेन्यू ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। डेफिसिट बजट में ऑलवेज टैक्स रिवेन्यू कम होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। इन दैट सिचुएशन पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, इन दैट सिचुएशन रिजल्ट निगेटिव निकलेगा। मतलब सरप्लस बजट में रिजल्ट पॉजिटिव होगा, डेफिसिट बजट में रिजल्ट निगेटिव होगा, ट्रेड सरप्लस में रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ट्रेड डेफिसिट में रिजल्ट निगेटिव होगा। क्लियर हुआ? मतलब बजट कॉन्सेप्ट में तुम्हारा 2 एलिमेंट का बात आ गया, T and G। ओके, मतलब गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? बट ट्रेड सरप्लस डेफिसिट में 2 चीज आ गया, व्हाट? एक्सपोर्ट X, इंपोर्ट M। क्लियर? गुड, ये हो गया पहला सम। सेकेंड वाला जो सम है ना, सेकेंड वाला सम में मैंने एक चीज लिया, देखो, इफ $1 इज इक्वल टू ₹55, मतलब तुमको $1 खरीदने के लिए 55 रुपीज देना है इंडियन करेंसी। क्लियर? तार माने $1 किनिबर कारणे तुम 55 रुपीज দিব লাগে। सो 55 रुपीज इज इक्वल टू $1। क्लियर? इन दैट सिचुएशन তুমি একাপ চাহ যদি ভাৰতত খোৱা, যেতিয়া $1 ইকুৱেল টু 55 আছিল, তেতিয়া ভাৰতত একাপ চাহ খাবলৈ 10 টকা লাগে, আৰু সেই একাপ চাহ আমেৰিকাত খাবলৈ $0.5 লাগে। ক্লিয়াৰ? তাৰপিছত তোমাক কৈছে प्रकृत विनिमय हार उलवा। मतलब इन दैट सिचुएशन इंडिया में एक कप चाय का वैल्यू था ₹10 और वही कप चाय का वैल्यू अमेरिका में था 0.5। इन दैट सिचुएशन रियल एक्सचेंज रेट से निकालना है वो बोला। क्लियर? तो रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए तुम 3 चीज लिख लो। एक्सचेंज रेट कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है। और कप ऑफ टी का फॉरेन प्राइस, मतलब अमेरिका में प्राइस कितना, F मतलब फॉरेन कंट्री में प्राइस, मतलब कप ऑफ टी कितना, 0.5। और डोमेस्टिक मार्केट में कप का चाय का प्राइस कितना, 10। मतलब दिस इज एक्सचेंज रेट 55, दिस इज द प्राइस ऑफ टी इन फॉरेन कंट्री, मतलब अमेरिका 0.5, दिस इज प्राइस ऑफ टी इन डोमेस्टिक मार्केट 10। ओके, ये 3टा बस्तु दी दिसे। क्लियर? এতিয়া এই 3টা বস্তুৰ পৰা তুমি रियल एक्सचेंज रेट কেনেকা ওলাবা সেইটো শিকাই আছো। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ों से अगर तुमको रियल एक्सचेंज रेट निकालना है तो तुमको लिखना है रियल एक्सचेंज रेट। ओके, रियल एक्सचेंज रेट मीन्स प्रकृत विनिमय हार। क्लियर? এইটো ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, প্ৰথম কাপ অফ টিৰ যিটো ফৰেন প্ৰাইস সেইটো দি পেলাই কাপ অফ টি অফ ডোমেস্টিক প্ৰাইস যিটো সেইটো ডিভাইড কৰিবা। ওকে, ইনটু তুমি কি কৰিবা, एक्सचेंज रेट इनटू करिबा। क्लियर? सो प्राइस ऑफ टी इन फॉरेन कंट्री, प्राइस ऑफ टी इन डोमेस्टिक कंट्री, मतलब इंडिया में प्राइस, अमेरिका में प्राइस, किसका, टी का। ओके, वो लिख लो। तो इंडिया में प्राइस था कितना, 10, अमेरिका में कितना था 0.5, ये 0.5 इनटू एक्सचेंज रेट कितना था 55। क्लियर? इसको तुम डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 55। क्लियर? इसके बाद ये वैल्यू अगर तुम देखो, इधर से मैं ले आया इधर, ओके, इधर ले आया तो वैल्यू निकलेगा 555 और 25 और 2 इधर आया ना, 25 5 2 27 हो गया। ये फाइनली ये निकल जाएगा कितना, 2.75। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, मतलब
5/100 into 55 में क्या निकला 275/100 तो 275/100 नथिंग बट 2.75 so this 2.75 is nothing but real exchange rate तार माने प्रकृत विनिमय हार उलाबो दिले तुमी की करिसा एकाप साहर फरेन कंट्रीत किमान प्राइस आसिले डलारर रेस्पेक्टत हेतु लिखिला आरो इंडियात मीन्स डोमेस्टिक मार्केटत कप अफ टी माने साहर दाम किमान आसिले हेतु लिखिला सो प्राइस इन फरेन कंट्री डिवाइडेड बाय प्राइस इन डोमेस्टिक कंट्री इनटू एक्सचेंज रेट ओके सो एटु जिते करि दिबा तुमार रियल एक्सचेंज रेट टु उलाई जाबो क्लियर सो रियल एक्सचेंज रेट टु उलाबर कारणे तुमी ए प्रोसेस टु फॉलो करिबा त फाइनली रियल एक्सचेंज रेट किमान उलाल 2.75 clear that means what this 2.75 is nothing but what this 2.75 is nothing but what 2.75 hoise $1 is equal to rupees 2.75 that means what in that situation real exchange rate is 2.75 means 2.75 Indian currency is required to purchase $1 तार माने $1 बा एक एकक क्लियर एक एकक डॉलर परचेज करिबर कारणे तुमी 2.75 एकक इंडियन करेंसी पे करिब লাগিব क्लियर दैट मीन्स $1 is equal to 2.75 Indian currency okay so in that situation 2.75 is real exchange rate means ইয়াত প্রকৃত বিনিময় হার হবো 2.75 okay so আজি মই ইয়াতে ক্লোজ কৰিছো নেক্সট ক্লাসত এটা ডিফারেন্ট টপিক বা न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट লৈ আগবাঢ়িম तब तक क्लोज करता हूं ओके धन्यवाद।